Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science, SPCGC Ajmer. In this video, we will discuss the political ideas, views, and thoughts of Thomas Hill Green. Green is such a thinker where in his ideas, elements of both the ideologies, that is idealism and liberalism, can be seen. Idealism where state controls every aspect of life and there is no freedom. This is basically German ideology, and liberalism believes in the liberty of a person without restrictions. It is basically British ideology, and according to Green, state should not to work as a dictator, and rights and liberty of a person should be protected, and both should work for the welfare of each other. Next one is Green's views on liberty. For him, liberty is neither merely lack of interference nor to do anything without any restrictions. He has supported the positive form of liberty where state and person are not contrary to each other. A person should get liberty or freedom to do whatever he wants to do. That kind of works that is right, and just and right works and without any hindrances, and wherever need of the restrictions is there is need of restrictions, and state has the right of those restrictions. Second one is his views on rights. For Green, rights are those conditions and facilities given by the society to a person for the welfare of the society itself. So there are two elements of rights: first, demand of a person; second one, approval of the society, plus as well as protection of the society. uh, Green has supported legal rights where he supports the rule of law, and whoever commits the crime should be get punished. And rights and morality here comes, and for Green, morality, that is kind of inner feeling, and laws and whatever state provides facilities, that is mainly considered with our external environment, not to the our inner consciousness. This is the basic difference between legal rights and the rights and morality. Next one is his views on the state. State is outcome of general will, and human consciousness wants freedom. Freedom or liberty involves rights, and rights demand the state. And this is the thought of Green, that will, not force, is the basis of state and functions of the state. Green has supported both the functions, positive as well as negative. आज हम लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक विचारक थॉमस हिल ग्रीन के राजनीतिक विचारों के बारे में। तो ग्रीन हमारे सामने एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने दोनों ही विचारधाराओं, जो कि परस्पर विरोधी विचारधाराएं मानी जाती हैं, आदर्शवाद और उदारवाद, उन दोनों में उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। आदर्शवाद जो कि बेसिकली जर्मन आइडियोलॉजी है, और लिबरलिज्म जो कि ब्रिटिश विचारधारा है। आइडियलिज्म या आदर्शवाद है, ये इसके अनुसार जो राज्य है ये सर्वशक्तिमान होता है, और ये व्यक्ति के जीवन के हर एस्पेक्ट को, हर हमारे पहलू को ये नियंत्रित करता है। जहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, या जो भी स्वतंत्रता दी जाती है राज्य के द्वारा दी जाती है और राज्य के प्रतिबंधों के अधीन रहती है। लिबरलिज्म, उदारवाद, यह एक ब्रिटिश विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर फोकस करता है, और इसका ये मानना है कि व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यहाँ ग्रीन ने अपने विचारों में दोनों ही विचारधाराओं को उन्होंने संश्लेषित किया है, उनमें समन्वय उन्होंने बैठाया है, जहाँ पर उनका ये मानना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन राज्य के द्वारा उस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा दी जानी चाहिए। इसे हम लोग देखेंगे उनके स्वतंत्रता के बारे में विचारों में। तो ग्रीन का ये मानना है कि स्वतंत्रता केवल हस्तक्षेप का अभाव नहीं है, और ना ही है दिस इज नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। उनके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है एक व्यक्ति को करने योग्य कार्य की छूट।
जो भी कार्य करने योग्य है, जो भी उपभोग करने योग्य है उनकी छूट, लेकिन जो बिल्कुल उचित तो ठीक हो। यहाँ पर उनका लिबर्टी का, स्वतंत्रता का पॉजिटिव फॉर्म आ जाता है, सकारात्मक स्वतंत्रता आ जाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है जहाँ पर राज्य और व्यक्ति हैं वो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं माने जाते हैं। व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन वह स्वतंत्रता केवल उसी सीमा तक दी जाती है जहाँ तक कि वह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक ना बने, और राज्य को भी इसके अंतर्गत ये अधिकार रहता है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सके। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन के अधिकार संबंधी विचार। तो ग्रीन का ये मानना है अधिकार वे दशाएं या स्थितियां हैं या वे सुविधाएं हैं जो कि समाज के द्वारा एक व्यक्ति को दी जाती है, और समाज ये सुविधाएं एक व्यक्ति को इसलिए देता है ताकि समाज का स्वयं का कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो अधिकार हैं इनके दो तत्व सामने आ जाते हैं। पहला व्यक्ति की मांग और दूसरा आ जाता है समाज द्वारा इस मांग की स्वीकृति, जिसके अंतर्गत समाज का संरक्षण भी शामिल है। इसके अलावा ग्रीन बात करते हैं लीगल राइट्स, कानूनी अधिकारों के बारे में। तो कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, और जो कोई इनका उल्लंघन करता है उसे दंड दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में विचार आ जाते हैं ग्रीन के अधिकार और नैतिकता के बारे में। तो ग्रीन ये मानते हैं कि अधिकारों का नैतिकता से गहरा संबंध होता है, क्योंकि इसके बिना नैतिक जीवन व्यतीत करना संभव नहीं होता है। लेकिन उनका यह मानना है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है कि अधिकार या जो कानून होते हैं वो व्यक्ति के बाहरी जीवन को नियंत्रित करते हैं, जबकि नैतिकता का संबंध हमारी आंतरिक मनोभावना से होता है, अतः उसका पालन शक्ति के प्रयोग से नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन के विचार आ जाते हैं राज्य के बारे में। ग्रीन के विचार आ जाते हैं तो पहला उनका आ जाता है स्टेट इज आउटकम ऑफ जनरल विल, राज्य सामान्य इच्छा का परिणाम है। यहाँ पर जो ग्रीन के विचार है वो रूसो से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों ही आइडिया, दोनों ही थॉट को उनको हम एक साथ करेंगे। पहला आ जाता है कि जो राज्य है वो सामान्य इच्छा का परिणाम है, और दूसरा बिल्कुल इसी का सिमिलर है कि जो मानवीय चेतना है वो स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। जनरली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो कोटेशंस हैं, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और हमें इसी को डिटेल में या समझाकर हमें इसको लिखना होता है। तो पहला आ जाता है राज्य सामान्य इच्छा का परिणाम है। तो ग्रीन का ये मानना है कि मानवीय चेतना या आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य है वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। और जो आंतरिक स्वतंत्रता है ये हमारे राजनीति विज्ञान का विषय नहीं, उतना नहीं है जितना कि हमारा विषय है बाह्य स्वतंत्रता। और इसका अर्थ है ऐसे वातावरणीय परिस्थिति का होना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक हित के कार्य कर सके, उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़े। तो ऐसी परिस्थितियों की जो शर्तें हैं वे ही अधिकार कहलाती हैं। तो पहला हमारे पास में आ जाता है कि मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अधिकार दिए जाएं। तो अधिकार वे शर्तें हैं जिसके अंतर्गत ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। अब हमारे पास में यहाँ पर राज्य आ जाता है, क्योंकि अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है और अधिकार अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की मांग करते हैं। तो इस प्रकार ग्रीन ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों की सामान्य इच्छा के आधार पर हुआ है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने लिए ये चाहते हैं कि हम लोग एक राज्य बनाएं, क्योंकि अधिकार हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकार जो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और मानवीय चेतना है जो कि स्वतंत्रता चाहती है। इसके बाद में हमारे पास में ग्रीन की एक और इम्पोर्टेंट कोटेशन आ जाती है, वो है विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। ग्रीन का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक विचार है, और उन्होंने जो अराजकतावादी विचारक है या साम्यवादी विचारक हैं उनके विपरीत जाकर उनका ये मानना है कि यदि राज्य डर से, भय से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का उदय होता है, और व्यक्ति जनरली अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का भी सम्मान करता है। लेकिन कभी कभी यह हो सकता है कि वो अपना किसी भी कारण से दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने लग जाए। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके अधिकार सुरक्षित रहें और दूसरों के भी अधिकार सुरक्षित रहें। तो हम क्यों ना एक ऐसा संगठन बना दें जो हम सभी के अधिकारों की सुरक्षा भी कर सके, और जो कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है वो उसको पनिश भी कर सके। तो इस प्रकार राज्य की स्थापना, राज्य का जो बेसिस है
वो हमारी खुद की इच्छा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक राज्य होना चाहिए जो कि हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, और हम राज्य की आज्ञाओं का पालन अपनी इच्छा से करते हैं, किसी भय से, डर से या शक्ति के दबाव से नहीं करते हैं। नेक्स्ट ग्रीन के विचार आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेट। जब हम लोग ग्रीन के राज्य के कार्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ग्रीन का ये इम्पोर्टेंट एक विचार है कि उन्होंने राज्य के कार्यों में सकारात्मक और नकारात्मक कार्य दोनों ही शामिल किए हैं। तो सकारात्मक राज्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेलफेयर स्टेट होता है, लोक कल्याणकारी राज्य होता है। ये ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। तो अगर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, पॉजिटिव स्टेट या वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट पूछी जाती है, या फंक्शंस ऑफ द स्टेट में पॉजिटिव स्टेट हम लोगों को करना है, देन यहाँ पर राज्य का प्रत्येक वह कार्य आ जाएगा जो कि वो हम लोगों के लिए करता है, अपने नागरिकों के लिए करता है। इसके अलावा इसका एक नेगेटिव यहाँ पर थॉट आ जाता है। नेगेटिव थॉट, उनका ये मानना है कि राज्य व्यक्ति को वो सब कार्य करने दे जो कि वो करना चाहता है, जो करने योग्य हैं, और इनके करने में जहाँ कहीं बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करना ये राज्य का एक नकारात्मक कार्य है। व्यक्ति वह कार्य करे जो कि करने योग्य है, लेकिन इनके करने में अगर उसे किसी बाधा का सामना करना पड़ता है, तो राज्य का ये कार्य है कि वह उन बाधाओं को दूर करे। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे अज्ञान है, शराबखोरी है, गरीबी है, ये सब मानव के विकास में बाधाएं हैं, तो इनको दूर करने के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार से माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दीक्षा प्रोवाइड करवाएं। तो इस प्रकार राज्य के कार्य आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।